رات کے 8 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم نے آج 1998 میں کیے گئے پاکستان کے تاریخی ایٹمی تجربات کے 25 برس مکمل ہونے پر سلور جوبلی منائی۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم تکبیر کے موقع پر سیاسی اور فوجی قیادت، سائنسدانوں اور انجینئرز کو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تحریک انصاف کے مزید 3 رہنماؤں نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے پر آج پارٹی چھوڑ دی ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ عام انتخابات حکومت کی آئینی مدت کی تکمیل کے بعد مقررہ وقت پر ہوں گے۔ مذہبی امور کے وزیر نے مکہ اور مدینہ میں عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سرمایہ کی اسلامی منڈی کے بارے میں پہلی بین الاقوامی کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS شاہجہاں نے ملیشیا لیانگ کاوی انٹرنیشنل میری ٹائم ایئر اسپیس ایگزیبیشن میں حصہ لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی طرف سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو سزائے موت دینے کی کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے سوڈان کے متحارب فوجی دھڑوں سے کہا ہے کہ وہ کل ختم ہونے والی جنگ بندی کو توسیع دیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینیوں کے لیے خوراک کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے عالمی برادری سے $5 کروڑ 10 لاکھ طلب کیے ہیں۔ اور عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ کل آذربائیجان کے شہر باکو میں شروع ہو رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آج 25 سال پہلے 28 مئی 1998 کو پاکستان کے جوہری تجربات کے 25 برس مکمل ہونے کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ فریحہ حسن کی رپورٹ سنتے ہیں۔ میں پاکستان جوہری تجربات کر کے دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا، جس کے پاس اپنے دفاعی ذخیرے میں جوہری ہتھیار یعنی نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ جوہری طاقت کے حصول سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت ناقابل تسخیر بنی، آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اظہار ہوا اور جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن میں برابری کی وجہ سے علاقائی استحکام ممکن ہوا۔ آج پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت یا مہم جوئی کو روکنے کی صلاحیت برقرار رکھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور تمام ملکوں کے لیے عدم تفریق اور مساوی تحفظ کے اصولوں پر مبنی عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں شراکت دار ہے۔ پاکستان بین الاقوامی برآمدی قواعد و ضوابط اور جوہری تحفظ اور سلامتی کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی عمل پیرا ہے۔ لاہور میں بھی یوم تکبیر کے حوالے سے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ آج لاہور سمیت پنجاب بھر میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے زیر اہتمام صوبہ پنجاب میں مختلف تقاریب اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا، جبکہ پنجاب کے تمام شہروں میں مختلف ریلیاں نکالی گئی اور لاہور میں مسلم لیگ نواز کے زیر اہتمام لبرٹی چوک میں آج شام ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز خطاب کریں گی۔ اس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ ادھر مریم نواز نے ٹویٹ کے ذریعے عوام کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح فیصل آباد میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر قیادت ضلع کونسل چوک سے ایک ریلی نکالی گئی، جو کچہری بازار، چوک گھنٹہ گھر، ریل بازار، گمٹی چوک سے گزرتے ہوئے چناب کلب چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اسی طرح جناح ہاؤس لاہور کے اطراف میں انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کی جانب سے بھی یوم تکبیر کے حوالے سے خصوصی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جبکہ بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ایک خصوصی سیمینار منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا یوم تکبیر اور ہماری سالمیت۔ اس موقع پر وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کا کہنا تھا کہ 28 مئی سن 1998 وہ تاریخی دن تھا جس دن پاکستان نے کامیاب ایٹمی تجربات کر کے دنیا پر اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا۔ کراچی سے یوم تکبیر کے حوالے سے ہماری نمائندہ ملاحت سولت کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح آج کراچی میں بھی یوم تکبیر کی سلور جوبلی بھرپور قومی جوش و جذبے اور اس عزم کے ساتھ منائی گئی کہ ملک کی حفاظت کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس دن کی مناسبت سے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عوام نے ملک کے ذہین اور قابل انجینئروں اور سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ اپنی بہادر پاک افواج کو بھی بھرپور الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، جن کی پیشہ ورانہ مہارت سے پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کے طور پر پہچانا گیا۔
عوام نے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے تمام تر مشکل حالات کے باوجود پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی میاں نواز شریف کی حکومت کی بھی بھرپور الفاظ میں تعریف کی گئی، جس نے بے انتہا عالمی دباؤ کے باوجود نیوکلیئر ٹیسٹ کا فیصلہ کر کے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا منہ توڑ جواب دیا اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھا۔ پشاور میں بھی یوم تکبیر کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے گئے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ یوم تکبیر کے سلسلے میں مرکزی تقریب آج پشاور میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی ترجمان اور سابق ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی اختیار ولی اور دیگر مقررین نے مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ایٹمی تجربات کر کے بھارت کے جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اختیار ولی خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر سیاسی قیادت، ذوالفقار علی بھٹو، سائنسدانوں اور تمام متعلقہ اداروں کے عہدیداروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی دن پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پشاور اور اس میں موجود چاغی ماڈل اور جناح ہاؤس لاہور کو جلانے میں ملوث عناصر کسی قسم کے رحم کے مستحق نہیں، تاکہ آئندہ کوئی ایسی توڑ پھوڑ کی جرت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کو سرکاری املاک اور دفاعی تنصیبات پر حملوں نے حملاوروں کی وحشیانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا۔ تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ملک کے استحکام کے لیے ایٹمی سائنسدانوں، پاک فوج اور حکومت کے کردار کو سراہتے ہوئے نعرے لگائے۔ اور کوئٹہ سے حسین فاروقی یہ رپورٹ سماعت کرتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں آج یوم تکبیر منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے آج کوئٹہ پریس کلب میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جس طرح یوم تکبیر کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت اور اپنی سالمیت برقرار رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی صلاحیت کا اصول قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی قابل فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو مسلم امہ کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے شیر محمد کی یہ رپورٹ۔ صوبے کے ضلع میں یوم تکبیر کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اپنی تقریروں میں پاکستان کو 7ویں ایٹمی طاقت بنانے پر سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور عبدالقدیر خان سمیت دیگر سائنسدانوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم تکبیر کے موقع پر اضلاع میں کیک کاٹے گئے۔ اس سلسلے کی مرکزی تقریب پاکستان مسلم لیگ سینٹرل سیکریٹریٹ گلگت میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے سابق ڈپٹی اسپیکر جعفر اللہ خان، مشیر اطلاعات شمس میر اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ خیر میں مظفر آباد سے یوم تکبیر کے حوالے سے بادشاہ خان کی یہ رپورٹ سماعت کرتے ہیں۔ اس تاریخی دن کی یاد میں تقریبات منعقد کی گئی اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان تقاریب اور ریلیوں میں ایٹمی پروگرام کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، سیاسی و عسکری قیادت اور سائنسدانوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی دفاع، سالمیت اور خوشحالی اور بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ یوم تکبیر کے موقع پر اپنے پیغامات میں آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے قوم کو ایٹمی تجربات کی سلور جوبلی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یوم تکبیر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھارت پاکستان کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی کا سوچ بھی نہیں سکتا اور چاغی اب پاکستان کے لیے طاقت کی علامت بن چکا ہے۔ عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم تکبیر کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایٹمی صلاحیت کے حصول کے لیے ملک کے سائنسدانوں، انجینئرز، سیاسی اور فوجی قیادت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 25 سال پہلے آج کے دن پاکستان نے بھارت کے ایٹمی تجربات کے جواب میں ایٹمی تجربے کیے جو خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر تھے۔ صدر نے کہا کہ پوری قوم ان لوگوں کی مخروص ہے جنہوں نے پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کے دن پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے ریڈ لائن مقرر کی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اس حوالے سے قواعد و ضوابط وضع کیے۔
उन्होंने सियासी और फौजी क़यादत, साइंसदानों और एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता तमाम अफराद को खिराज तहसीन भी पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दूर अंदेश शख्सियत थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि एक दलेराना क़यादत का मुजाहरा करते हुए नवाज शरीफ ने सजा और जजा की पॉलिसी मुस्तरद करते हुए इस अम्र को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि हमें आगे बढ़ने के लिए इसी जज्बे का मुजाहरा करना होगा जैसे माशी खुद मुख्तारी खुद कफालत के हुसूल के लिए यौम तकबीर के मौके पर किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सब के साथ साथ हमारी मुसल्लह अफवाज हमारे दुश्मनों के मसमूम अज़ाइम के मुकाबले में इस प्रोग्राम के मुहाफ़िज़ हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर होने का ऐलान है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम इस मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम अपने दोस्तों और मुहसिनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी, जुर्रत, बहादुरी, बसीरत और कौमी मफाद पर समझौता न करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हम साइंसदानों समेत पूरी टीम को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानियां दी और अपनी लाजवाल काविशों से आइंदा नस्लों के लिए वतन का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 25 साल पहले आज के दिन एटमी तजर्बात करके मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया। उन्होंने आज सियालकोट में एक कॉलेज के सालाना जलसे तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने गाज़ियों शोहदा की कदर करनी चाहिए और वो हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा दौर में बामक़सद तालीम का हुसूल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हम बहुत जल्द मुल्क को तामीर और तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न कर देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यौम तकबीर हमारे वतन का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि हम यौम तकबीर के 25 साल मुकम्मल होने पर उन तमाम लोगों को शानदार खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस तारीखी काम को पाया तकमील तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने यौम तकबीर के मौके पर उन अजीम और बासलाहियत अफराद को खिराज तहसीन पेश किया है जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में जौहरी प्रोग्राम को परवान चढ़ाया और ये शानदार संग मील हासिल किया। फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुसल्लह अफवाज उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। बयान में कहा गया कि इस कामयाबी ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बेहतर बनाया। पाक फ़ज़ाइया ने एटमी तजर्बात 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम के अज़्म को सलाम पेश किया है। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के एटमी तजर्बात के जवाब में एटमी धमाके करने की सलाहियत का मुजाहरा किया। पाक फ़ज़ाइया को इस तारीखी मौके पर अपना अहम किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। सियासी उमूर और कौमी वर्से के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि 28 मई पाकिस्तान के तारीखी दिन के तौर पर अहमियत का हामिल है। उन्होंने लोअर दीर में आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि आज किसी को भी पाकिस्तान को मैली नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। रेडियो पाकिस्तान इस खबरनामे के फौरन बाद अपने कौमी नशियाती राबते पर यौम तकबीर के सिलसिले में पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की तारीख के मौजू पर एक फीचर प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस प्रोग्राम के बाद यौम तकबीर के बारे में मुल्क भर से मौसूल होने वाली रिपोर्टें भी नशर की जाएंगी। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशियाती राबते पर 9:10 पर रेडियो ड्रामा भी नशर करेगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक खुर्रम अली खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान और इसके इदारे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फौज हमारा फख्र है और पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन में मुकीम रहनुमा तारिक महमूद अल हसन ने पार्टी से अलग होने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान आज लंदन में किया। तारिक महमूद अल हसन का कहना था कि इमरान खान की तशद्दुद की सियासत और गैर दानिशमंदाना फैसलों ने पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अवाम तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने पर मजबूर हैं। याद रहे कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के 65 रहनुमा पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। सरगोदा से साबिक रुकन पंजाब असेंबली डॉक्टर नादिया अजीज ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। आज शाम इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की।
रेलवे और महकमा हवाबाजी के वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद एक ही वक्त पर होंगे। जिन्ना हाउस के दौरे के बाद आज लाहौर में सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि GHQ और फौजी तनसीबात पर हमले सियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े से जिन्ना हाउस का तकद्दुस पामाल हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि क़यादत का असल काम नौजवानों की दुरुस्त रास्ते की जानिब रहनुमा करना और उनके जहनों को पुरतशद्दुद रुझान से आलूदा होने से बचाना है। उन्होंने तहरीक इंसाफ से फौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक पर हमलों के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने जिन्ना हाउस लाहौर और जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस शरपसंद अफराद को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। आज गुजरांवाला में उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि यादगार शोहदा और मस्जिद को जलाने वाले शरपसंद सियासी कारकुन नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। अपने इन 3 बड़ों से मुतालबा करते हैं कि इन मुजरिमीन के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमात जो हैं वो चलाए जाएं और इनको सजाएं दी जाए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान पर जोर दिया कि वो मिल बैठकर मसाइल का हल निकालें। उन्होंने कहा कि वो उन तमाम अनासिर के खिलाफ लड़ेंगे जो मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि G20 इजलास का भारतीय मकबूजा कश्मीर में इनेकाद एक मुतनाज़ फैसला है। मजहबी अमूर के वजीर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि वह हज के इक़दामात को खुशूसलूबी से सर अंजाम देने को यकीनी बनाने के लिए ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाजी कैंप इस्लामाबाद में आज़मीन हज के मुआविनीन के आखिरी तरबियती सेशन से खिताब करते हुए हाज़रीन को आगाह किया कि उन्होंने आज़मीन हज की जानिब से किसी भी किस्म की तशवीश या शिकायत के इजाले के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। वफाकी वज़ीर ने राबते में आसानी के लिए तमाम आज़मीन हज में व्हाट्सएप नंबर तकसीम किए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वह आज़मीन के मुआविनीन की तरफ से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर ने मक्का और मदीना में आज़मीन हज के लिए सेहतमंदाना, ताज़ा और हिफ्ज़ान सेहत से भरपूर खाने की फराहमी के लिए तसल्ली बख्श इंतजामात किए हैं। APP से गुफ्तगू करते हुए वज़ारत के ओहदेदार फैज़ उमर सयाल ने कहा कि 9 केटरिंग कंपनियां आज़मीन हज को दिन में 3 बार मयारी खाना फराहम कर रही हैं, जबकि माहिरीन की जानिब से खुराक के नमूनों का पूरी तवज्जो से तज्जिया किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर केटरिंग कंपनियां आज़मीन हज को सेहत बख्श खुराक फराहम नहीं करेंगी तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सरमाई की इस्लामी मंडी के बारे में पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को अपने मालियाती निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आकिब सईद ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात की और कॉन्फ्रेंस के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आला को बताया कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वफूद पहले ही पहुंच चुके हैं। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुनाफा बख्श टेक्सटाइल और चमड़े के शोबों ने मुल्की मईशत में मुस्बत किरदार अदा किया है। आज कराची में 4वीं बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एक्सपो के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों अफराद इन शोबों से वाबस्ता हैं और मुल्की मईशत की तरक्की में खातिर खा हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नर का कहना था कि एक्सपो के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में पाकिस्तानी अवाम और इदारों की सलाहियत बाजी हो रही है, जिसमें अब तक टेक्सटाइल मसनूआत के $25 करोड़ से ज़ायद के मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी ने आज कोयटा में बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी आइंदा इंतखाबात में आज़ाद जमात की हैसियत से हिस्सा लेगी और सीट एडजस्टमेंट पर गौर करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी सूबे की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसे अवामी हिमायत हासिल है। पाक बहरिया के जहाज PNS शाहजहां ने मलेशिया की बंदरगाह लंकावी में इंटरनेशनल मैरीटाइम और एरोस्पेस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। पाक बहरिया के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और हिस्सा लेने वाली बहरी अफवाज के दरमियान मिलकर काम करने की सलाहियत में इजाफा करना है। PNS शाहजहां के अफसरान और अमले ने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस, मुबाहिसों और बहरी रोकथाम की कार्रवाइयों के बारे में मालूमात के तबादले की नशिस्तों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रुनाई, चीन, इंडोनेशिया,
इटली, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अमरीका और दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ बहरी मशकों में भी हिस्सा लिया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक और गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को अपनी फरमाबरदार अदलिया के जरिए कत्ल करने की साजिश रचा रही है। KMS के मुताबिक मीर वाइस उमर फारूक और गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में अपने अलग अलग बयानात में भारत की बदनामी जमानत तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए मौत दिलाने के मुतालबे को कश्मीरी अवाम को मुश्तिल करने की दानिस्ता कोशिश करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों से अपील की कि वो आगे आएँ और यासीन मलिक को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाएं। मीर वाइस उमर फारूक ने जो श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं, भारत की तमाम सियासी जमातों और अवाम पर जोर दिया कि वो मोहम्मद यासीन मलिक समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा कराने के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव डाले। गुलाम अहमद गुलजार ने कहा कि भारत की मुतासिब अदालतें हिंदुत्व हुकूमत के जेर असर काम कर रही हैं और अपने पैदाशी हक के खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक के लिए सजाए मौत का मुतालबा करना एक गहरी साजिश है जिसका मकसद एक और मकबूल कश्मीरी रहनुमा का अदालती कत्ल कराना है। उधर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक बयान में मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ NIA के इकदामात की हिमायत करने पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में BJP के अलाकारों की शदीद मजम्मत की है। JKLF ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो मुनाफिकत की सियासत तर्क करें और भारतीय हुकूमत पर जोर दें कि वो आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं को निशाना बनाने से बाज रहें। तुर्की में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पहले मरहले में वोट डालने की शरह 88.8% रही थी, लेकिन कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब न हो सका। सदर व्लादिमीर पुतिन ने सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाने का हुक्म दिया है ताकि रूस की फौज सिविलियन यूक्रेनी इलाकों में तेजी से नकलो हरकत को यकीनी बना सके जो अब मॉस्को के जेर कंट्रोल हैं। टेलीग्राम पर एक पैगाम में पुतिन ने कहा कि उनका काम जंगी जोन के गिरदोनवाह की लाइनों को काबिल एतमाद तरीके से ढांपना है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि रूसी फेडरेशन की नए इलाके के अवाम के लिए भेजी जाने वाली फौजी, सिविलियन और माल बरदार गाड़ियों की तेज नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका और सऊदी अरब ने सूडान में मुतहारिब फरीकों पर जंगबंदी में तोसी देने पर जो जोर दिया है कल खत्म हो रही है। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक मुश्तरका बयान में सूडान की फौजी हुकूमत और हरीफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी में तोसी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया है। बयान में कहा गया है कि सूडान के अवाम को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। मीडिया की इत्तलात के मुताबिक दारुल हुकूमत खुर्तूम और ओमडरमन में मुसलसल झड़पें हो रही हैं। इंसानी हुकूक के मुबस्सरीन ने दारफोर के मगरबी इलाके अल-फशीर में भी लड़ाई की इत्तला दी है। आलमी इदारे खुराक ने खबरदार किया है कि फंड्स की कमी के बायस मगरबी किनारे और गजा में 2 लाख फलस्तीनी खानदान अगले माह के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक से महरूम हो जाएंगे। मेक्सिको की दरिया अहमर में मोटरसाइकिल रैली के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकारों का आलमी दिन कल मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के किरदार को उजागर करना है। पाकिस्तान की अमन फौज बड़ी महारत और लगन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन एहलकारों के मिशन को पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। जी सामीन, अब पेश खिदमत हैं खेलों की खबरें। वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप कल से अजरबैजान के शहर बाकू में शुरू होगी। चैंपियनशिप में 7 रुकनी पाकिस्तानी टीम शिरकत करेगी। साउथ एशियन गेम्स में तलाई तमगा हासिल करने वाले हारून खान, हमजा उमर सईद, शाहजेब खान और अरबाज खान 4 मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के सदर राजा वसीम अहमद भी वर्ल्ड ताइक्वांडो जनरल असेंबली में शिरकत के लिए टीम के हमरा होंगे। वो साउथ एशियन सदर और सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेंगे। इस साल के अवाखिर में पाकिस्तान में आइंदा एशियन ओपन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कवायद ज़वाबित पर बातचीत करेंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाएगी। आज नारोवाल में क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में 250 स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किए जाएंगे। बलूचिस्तान में अयूब स्टेडियम, कोयटा समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में 34वें कौमी खेल 2023 के मुकाबले जारी हैं और बलूचिस्तान के खेलों के महकमे के मुताबिक नई पॉइंट टेबल के मुताबिक आर्मी मजमूई तौर पर 300 तमगे हासिल करके पहले नंबर पर मौजूद है।
पाकिस्तान शाहीन्स 3 मई से 27 मई तक 2 4 रोज़ा और 6 50 ओवर्स पर मबनी मैचों की सीरीज में हिस्सा लेने के बाद आज जिम्बाब्वे से रवाना होंगे। ये मैच सीरीज जिम्बाब्वे के 3 शहरों क्योके, मचुआरे और हरारे में खेली गई, जिनमें 4 रोज़ा मैच और मैचोर में, जबकि 50 ओवर्स के 6 मैचेस हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलर्डिक 2 रोज़ा दौरे पर कल मंगल को लाहौर पहुंचेंगे। वो पीसीबी की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी, पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बैरिस्टर सलमान नसीर और दीगर बोर्ड के हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। और सामने अब आपको लिए चलते हैं हम तिजारत की दुनिया में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मुश्किल माशी हालात के बावजूद आइंदा बजट में सूबे के अवाम बिलखुसूस जमशुदा असलाह के अवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां काशिफ अशफाक ने कहा है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स की सेल्स में नुमायां इजाफा हो रहा है। अब रुख करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का। पाकिस्तानी फिल्म तेरी मेरी कहानियां ईद उल फितर पर रिलीज होगी, जिसमें मुमताज़ फनकार हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की फिल्मी सनत बहाली की राह पर गामजन है और गुज़िश्ता साल लेजेंड ऑफ मौला जट ने तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ डाले हैं और बड़ी कामयाबी इस हवाले से हासिल की है। और सीनियर अदाकार फिल्म साज शान शाहिद ईद पर मकामी फिल्मों की रिलीज पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा फरीहा अल्ताफ, नबीला मकसूद और फीफी हारून ने मिलकर पाकिस्तान में पहले फैशन म्यूजियम और फैशन गाला इवेंट के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है। माहिरीन ने खला में तहकीक करके इंकशाफ किया है कि निज़ाम शमसी के छठे सैयारे ज़ुहल के गिर्द मौजूद दायरों की उम्र इतनी नहीं जितनी समझी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एसोसिएट प्रोफेसर तबियात दांश साशा कैंप की रहनुमाई में होने वाली तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पुराने इस सैयारे के गिर्द मौजूद गुबार के दायरों की उम्र सिर्फ 40 करोड़ है। और आपको ये बताएं कि चीनी साइंसदानों ने कागज जैसे बारीक और इंतहाई लचकदार शमसी खुलियों की पैदावार में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। खेलों की खबरें आपने सुनी, तिजारती और फन की दुनिया से भी हमने आपको आगाह किया, साइंस की दुनिया से भी मालूमात आपको दी। अब चलते हैं मौसम की तरफ। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर वस्ती और जनूबी इलाकों में मतला अबारालूद है, जबकि वस्ती जनूबी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान और मगरबी खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश मुल्तान में 22 मिलीमीटर, बहावलपुर 8, बन्नू 9, पारसनर 5, बारखान 22, लसबेला 6, योग 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जलाबारी का भी इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 45, मोहनजोदड़ो और स्करण में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों के रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं: इस्लामाबाद 34, मरी 22, लाहौर 37, कराची 36, पेशावर 36, कोयटा 34, मुजफ्फराबाद 36, गिलगित 30, श्रीनगर 24, जम्मू 35, लेह 17, पुलवामा 23, अनंतनाग 22 और शोपिया में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले हम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। कौम ने आज 1998 में किए गए पाकिस्तान के तारीखी एटमी तजुर्बात के 25 बरस मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली मनाई। सदर वज़ीर आज़म ने यौम तकबीर के मौके पर सियासी और फौजी क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स को पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए शानदार खिराज तहसीन पेश किया है। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 3 रहनुमाओं ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात और फौजी तनसीबात पर हमले करने पर आज पार्टी छोड़ दी है। और मजहबी अमूर के वज़ीर ने मक्का और मदीना में आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंड, मुदीर खेल की खबरें आबिद रजा दस्ती, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान खान, कोऑर्डिनेशन एडिटर खालिद महमूद अय्यास, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा,
पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामा की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अल्लाह हामिद नासिर।